ठीक है. So last class we started off with the chemical properties. दो chemical properties मैंने discuss कर ली थी. एक थी the basic nature of amines और second था alkylation. Amines do not undergo the Friedel-Crafts alkylation और Friedel-Crafts acylation. Aniline नहीं करता वो. क्यों? क्योंकि Friedel-Crafts reactions are basically being done with anhydrous AlCl3. And anhydrous AlCl3 is a Lewis acid, aniline is a Lewis base. They both reacts with one another to give us a salt formation. That's why Friedel-Crafts reactions do not take place with aniline. Instead, normal alkylation or normal acylation do take place, but not the Friedel-Crafts ones. क्या होता है? So second was the alkylation. So मैंने कहा बेटा कि आपके पास क्या है, there is an aniline with us. Let's say this, we are showing it like this. NH2 को मैंने अलग से दिखा दिया, H and H. We are reacting it with any particular alkyl halide, let's say CH3Cl, in presence of a base that is OH minus. Same thing can take place in the presence of Na2CO3, any other base also. So H from here, Cl from here removes, HCl बाहर गया, and CH3 goes and attaches on it. So the product formed is NH. This reaction would proceed further till the point the salt is being formed. अभी salt नहीं बना बेटा हमारा. जब तक salt नहीं बनता ये reaction आगे proceed होती रहेगी. तो अगर आगे चलते हैं, again CH3Cl, from here H, from here Cl removes, क्या बन गया? N with CH3 and CH3, again CH3Cl, then there would be a salt being formed, that is N plus Cl minus with CH3 whole thrice. That we call it to be N comma N trimethyl anilinium iodide या क्लोराइड. अगर Cl है तो क्लोराइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड होगा. बेस के साथ रिएक्शन हो रही है. ठीक है. अगर वो ये बोलते हैं हम लोगों को दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन अस रिएक्टेड 2 टाइम्स ओनली, तो 2 टाइम्स रिएक्ट करने के बाद वी वुड हैव गॉट दिस प्रोडक्ट. आगे प्रोसीड ना करता फर्दर. डिपेंड्स कि वो हमें अगर कुछ मेंशन नहीं करे, फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो सॉल्ट. अगर वो मेंशन कर रहे हैं 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली वी वुड बी फॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. आगे चलते हैं बेटा. थर्ड रिएक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट वी कॉल इट टू बी एसाइलेशन. एसाइलेशन में क्या होगा बेटा? बोलता है कोई भी एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन if it is being treated with acid chloride or anhydride, in presence of OH minus or any other base, we would be getting a amide out of that. We would be getting the amide out of that. एलिफेटिक और एरोमेटिक, प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. एलिफेटिक प्राइमरी और एरोमेटिक प्राइमरी, एलिफेटिक सेकेंडरी और एरोमेटिक सेकेंडरी एमाइन, रिएक्टिंग इट विद एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, किसी से भी रिएक्ट करें, we would be getting our desired product as amide. Let's go for our reaction. Let's take primary aliphatic. So CH3NH2
This is primary aliphatic. If I react this primary aliphatic with any particular acid chloride, so let's say I am taking this acid chloride in presence of a base OH minus. So what would happen? यहाँ से H, यहाँ से Cl would remove, and I would be getting my product as CH3 NH C double bond O CH3 plus of HCl would be released. What would be the name of this product? Name of this N मिथाइल इथेन एमाइड. बेटा ये एमाइड हो गया दिस थिंग, क्योंकि मैंने क्या बताया, N के जिस साइड पे C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होएगा दैट आई वुड बी ट्रीटिंग इट एज टू बी एमाइड, और दूसरी साइड वाला क्या हो जाएगा बेटा, दिस वुड बी मिथाइल. सो इट वुड बी N मिथाइल इथेन एमाइड. बोलो बेटा. क्लियर एवरीवन? जल्दी से नोट डाउन करो, आगे और रिएक्शंस देखेंगे इस पे. ठीक है, लेट्स गो फॉर अदर रिएक्शंस इन दिस ओनली. एरोमेटिक प्राइमरी ले लेते हैं बेटा. लेट्स से aniline, this is an aromatic, a primary amine, reacting it with acid chloride. मान लो हमने किससे रिएक्ट किया, इसके साथ, या एनहाइड्राइड ले लो. चलो इसमें पीछे एसिड क्लोराइड लिया था, नाउ लेट्स टेक एन एनहाइड्राइड in presence of OH minus. So what would happen बेटा, यहां से H, यहां से ये वाला पार्ट रिमूव, and the product formed would be NH C double bond O CH3. This is again an amide being formed with the name that is N-phenyl ethanamide. N-phenyl ethanamide. Clear? चलो go for it fast. करो बेटा. I want the name of the products being formed. Names of the amides that are being formed. जल्दी से. हाँ जी. So the products formed would be this would be the product formed N-ethyl N-methyl benzamide. N-ethyl N-methyl benzamide. Next is
this would be the product, which would be N-methyl N-phenyl butanamide. बोलो बेटा. Acylation is clear to all of us. How to go for the acylation part? चले आगे. तो ठीक कर लेते हैं ना फिर जल्दी से. नाम भी लिख लेते हैं जल्दी से. चलो बेटा. So this was the acylation part. Next reaction that comes up is the fourth reaction, that is reaction with nitrous acid. Nitrous acid क्या होता है बेटा? This we call it to be nitrous acid. Nitric acid is HNO3, nitrous acid is HNO2. ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ रखी है बेटा. If we remember, क्या पढ़ा था रिएक्शन में? कुछ ऐसा हमने किया था पहले, that is Grignard's Getterman coach. ऐसी कोई रिएक्शन हमने पढ़ी थी पहले. डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करने की ये रिएक्शन थी हमारे पास. अब बेटा इसमें होता क्या था? वी गेट्स अ डाइजोनियम सॉल्ट ओवर हियर. अगर इसको रिएक्ट करोगे तो इवेंचुअली वी वुड बी गेटिंग HNO2 फ्रॉम हियर. NaNO2 plus HCl gives you HNO2 plus HCl. हम किससे पढ़ रहे हैं? HNO2 से ही पढ़ रहे हैं. तो इन दिस केस आपको प्रोडक्ट क्या मिलता था यहाँ पे? दिस इज द प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर. That is benzene diazonium salt is being formed over here. But अगर यही same reaction जब aliphatic amines में होते, this was an aromatic amine. ये इसलिए बन पाता है क्योंकि benzene diazonium salt is resonance stabilized. Because of that particular reason, it do exist and it is very much stable. But अगर मैं यही reaction बेटा RNH2 and I am reacting it with NaNO2 plus HCl, इसमें भी बेटा यही सेम चीज बनती है. पहले RN2 plus Cl minus, but this is very much unstable क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन दिस इज वेरी मच अनस्टेबल एंड इट फर्दर डिसोसिएट्स टू गिव अस अल्कोहल. कैसे? अभी डिस्कस करते हैं कैसे अल्कोहल बन जाता है. अब देखो, कोई भी हमारे पास एमाइन है, मान लो ये है. ये मैं रिएक्शन पहले भी बताई है. इफ यू रिमेंबर अल्कोहल फिनॉल्स में आपने नाइट्रस एसिड की HNO2 की रिएक्शन पढ़ी है. क्या मैं HNO2 को ऐसे शो कर सकता हूं? N के नीचे N लिख दो बेटा. डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, bond breaks from here, so the compound formed is R CH2OH plus N2 plus H2O. किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ बेटा बोल. क्या बेटा बोल? हाँ यही तो बना के दिखाया बेटा. ये वही तो रिएक्शन करी है. क्या नहीं आया बताएगा तो. HNO2 का स्ट्रक्चर ये होता है. उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. N के नीचे N, एक साइड पे डबल बॉन्ड हो, दूसरी साइड पे सिंगल बॉन्ड OH. दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक कर दिया N के. क्या बन गया? RCH2OH N2 और ये H2O. RCH2OH N2 और H2O. ठीक है, गो फॉर इट.
Go for it and write the names of the products being formed. Names of the product as well. Hanji beta. So in the first one you would be getting a ethanol. In the second one we would be getting propane to all, and third one that would be benzyl alcohol. CH3 CH2OH, CH3 CHOH CH3 and benzene with CH2OH, that is benzyl alcohol. Clear? ठीक है, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे. फिफ्थ और सिक्स्थ रिएक्शन दोनों जो है बेटा, दैट इज बेसिकली फॉर द केमिकल टेस्ट. एक है आपके पास हिंसबर्ग टेस्ट, एक है हमारे पास आइसोसाइनाइड टेस्ट. दो टेस्ट हैं जिससे हम अमाइंस को डिस्टिंग्विश करते हैं. तो स्टार्टिंग विद द हिंसबर्ग टेस्ट. हिंसबर्ग्स टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary amines. हिंसबर्ग टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. क्या होता है हिंसबर्ग टेस्ट में, ध्यान से सुनेंगे. बट इट इज फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. अगर आपको कभी प्राइमरी सेकेंडरी में करना है, प्राइमरी टर्शरी में करना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में करना है, तो वी कैन यूज दिस टेस्ट. The basis of the test is solubility. किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे which would be primary, which would be secondary, which would be tertiary, that is solubility. And Hinsberg reagent is benzene sulfonyl chloride. This is benzene sulfonyl chloride. Benzene with SO2Cl is benzene sulfonyl chloride. ठीक है. होता क्या है बेटा, सब अच्छे से यहाँ पे ध्यान दोगे आप. प्राइमरी अमाइन, secondary amine and a tertiary amine. So let's say we are having with CH3NH2, this thing, this is CH3NH2, reacting it with benzene sulfonyl chloride, which is this. यहां से H, यहां से Cl removes बेटा, and the product formed is this thing. ठीक है, इसको बोलते हैं हम N पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, N मिथाइल benzene sulfonyl amide. This is an amide that is being formed, benzene sulfonyl amide. ठीक है, N methyl benzene sulfonyl amide. आते हैं सेकेंडरी पे. CH3N CH3H with this thing. What would happen? यहाँ से H, यहाँ से Cl removes this thing and the product formed is N, N dimethyl benzene sulfonyl amide. And अगर मैं टर्शरी की बात करता हूं बेटा,
In the case of tertiary, we can clearly see that there is no hydrogen being attached to the amine. Because of that particular reason, there would be no reaction being taking place. So पहली चीज तो हमारे को tertiary पता लग जाता है फर्स्ट स्टेप में ही, that which is tertiary one. अब प्राइमरी सेकेंडरी पता करने के लिए बेटा वी ट्राई टू डिसॉल्व दिस इन aqueous KOH. aqueous alkali में हम डिसॉल्व करते हैं इसको दोनों को. If we dissolve this in aqueous KOH, so what happens over here beta? OH from here, H from here removes and it forms a salt. It forms a salt, that is this. This thing beta. It forms a potassium salt because H was there with the nitrogen which can be removed with OH, and it forms a potassium salt. But अगर यही same चीज इसके साथ करते हैं तो there is, तो in the case of secondary there is no solubility, in the case of primary there is the solubility. soluble हो रहा है primary के केस में but secondary में soluble नहीं होएगा. सो इन द फर्स्ट स्टेप जहां पे रिएक्शन ना हो वो टर्शरी, आफ्टर एडिंग एक्वस KOH जहां पे ना हो वो सेकेंडरी, और जो डिसॉल्व हो जाए सॉल्युबल हो जाए दैट वुड बी अ प्राइमरी एमाइन. बोलो बेटा. दिस वी कॉल इट टू बी द हिंसबर्ग टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस. हिंसबर्ग टेस्ट. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करोगे. चलो स्टार्ट करते हैं. सो हिंसबर्ग टेस्ट बेटा यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस, इफ फॉर एग्जांपल प्राइमरी को सेकेंडरी से या प्राइमरी को टर्शरी से, सेकेंडरी को टर्शरी से, किसी में भी अगर यूज करना हो तो आपको हिंसबर्ग टेस्ट हम यूज कर सकते हैं. Another test is there जो किसके लिए होता है, खाली प्राइमरी के लिए होता है, that distinguish primary from secondary and tertiary. So going for that now. हाँ जी बिल्कुल होता है ये वाला टेस्ट, एरोमेटिक के लिए भी होता है. एलिफेटिको एरोमेटिको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज सॉरी आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन टेस्ट. आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन टेस्ट किसके लिए होता है बेटा? प्राइमरी एमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो, कोई भी हो दोनों में से, वर्सेस आ सेकेंडरी एमाइन और आ टर्शरी एमाइन. मतलब ये खाली प्राइमरी एमाइन टेस्ट देता है, सेकेंडरी टर्शरी टेस्ट नहीं देता. तो प्राइमरी को सेकेंडरी से करना हो, प्राइमरी को टर्शरी से करना हो, वी कैन गो फॉर दिस, बट वी कैन नॉट गो फॉर सेकेंडरी को टर्शरी से अगर करना है तो वी कैन नॉट गो फॉर दिस टेस्ट. ओनली फॉर द प्राइमरी टू सेकेंडरी या प्राइमरी टू टर्शरी, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो. क्या होता है बेटा इस टेस्ट में, कोई भी एलिफेटिक अमाइन है, मान लो ये प्राइमरी एलिफेटिक RnH2, reacting it with chloroform in presence of आपको थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन क्या दे देते हैं, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड सम अदर कंपाउंड. आपने तो ये पढ़ा है प्राइमरी एमाइंस के लिए, तो क्लोरोफॉर्म के लिए कैसे करोगे? बट दिस इज द टेस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म एज वेल यार.
अगर क्लोरोफॉर्म एक कंपाउंड क्लोरोफॉर्म है और दूसरा कंपाउंड कुछ और है, मान लो कुछ भी हो XYZ कंपाउंड, दोनों को प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो रिजल्ट वुड कम आउट टू बी सेम ना। तो दिस टेस्ट इज आल्सो फॉर द क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म के लिए भी केमिकल टेस्ट कभी कभी आपसे बोलते हैं। सो होता क्या है बेटा इसमें आपके पास, we get a very foul, very bad smelling compound, that is RNC. This we call it to be isocyanide, and it's a very bad, very foul smelling compound. Foul smelling compound is being formed over here in the case of primary amine. But अगर secondary या tertiary के साथ करता बेटा, there would have been no reaction, और आपको justify कैसे होता, over there wouldn't have been any foul smell. जहाँ पे भी bad smell आएगी वो primary हो जाएगा, जहाँ पे नहीं आएगी वो secondary या tertiary है, we cannot tell that. अगर वो बताना है तो हमें Innsbruck के लिए जाना पड़ेगा फिर। क्लियर है बात? गो फॉर इट फास्ट। अक्षित समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलो करो जल्दी से। एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग फॉर्म्ड। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, राइट द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉर्म्ड। So please remember, this test is only and only for the aliphatic or aromatic primary amines. It is not given by secondary, it is not given by tertiary amines. ठीक है? So methyl isocyanide, ethyl isocyanide and phenyl isocyanide. Moving further, that is the seventh reaction and the last of this, that is electrophilic substitution reaction. अब बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा, इज माय एनिलीन एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और इज इट अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। पहली चीज वो पता होनी चाहिए। अगर वो पता होगा तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा जाके। सो फर्स्ट वी वुड बी ड्रॉइंग द रेजोनेंस ऑफ एनिलीन। दिस इज एनिलीन, सो क्या होएगा बेटा, इट्स अ पॉजिटिव रेजोनेंस ग्रुप। सो लोन पेयर से डबल बॉन्ड बाहर आके फिर से नेगेटिव चार्ज। दिस थिंग बेटा, अगेन नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बाहर आके फिर से नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड फिर से बाहर आके नेगेटिव चार्ज। और लास्टली नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड वापसी ऊपर जाके नेगेटिव चार्ज, एंड यू वुड बी गेटिंग द that is this, and equivalent structure of it would be
So clearly if we can see over here, then we can see that the negative charge is being developed either at ortho position or at para position, owing to which we can say that aniline is O comma P directing towards electrophilic aromatic substitution reactions. So aniline is O comma P directing towards E plus attack. ठीक है. First reaction in this comes as bromination. So beta, when we go for the bromination of aniline, then there is a tribromination of aniline being taking place. Aniline normal monobromination नहीं करता, it go for the tribromination, in which we get Br, Br and Br. That is 2,4,6 tribromo aniline. Got it? 2,4,6 tribromo aniline. Second, it's nitration. Going for the nitration of aniline. So there is a very different thing happens that with the nitration of aniline. When we go for the nitration of aniline, what happens beta? हमने बोला that aniline is orthopara directing towards electrophilic substitution reactions. Aniline is orthopara directing towards electrophilic substitution reactions. चलो देखो. So very different thing happens with the nitration of aniline. What happens in the nitration? नाइट्रेशन में बेटा हम लोगों को 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं. हमने क्या कहा? दैट एनिलीन इज एन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट देन ऑल्सो वी गेट 3 प्रोडक्ट्स, वन ऑफ ऑर्थो, वन ऑफ पैरा, वन ऑफ मेटा. तीनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं एनिलीन के केस में. इट्स नॉट द 2 प्रोडक्ट्स और आर ट्राइब नाइट्रो प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड. इट इज ऑर्थो, पैरा, मेटा, तीनों प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, जबकि मेटा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट इट इज ऑर्थोपैरा. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर इज NH2 with NO2, NH2 with NO2 at the meta position, and a NH2 with NO2 at the para position. And that too जो meta position का product बनता है, that is also not less product that is being formed. It is a 47% meta product that is being formed. The question comes is why? आपने बोला aniline orthopara directing है, but then also meta product बन रहा है, and that too 47% meta. मतलब out of these 3 no one can be acting as the major and minor product. minor तो decide हो सकता है क्योंकि 47 ये बनता है, 51 para बनता है, and 2% is the ortho that is being formed. But 47 और 51 में से we cannot decide major and minor because both are almost same. major minor decide होता है, one is 95%, one is 98%, another is 2%. वहाँ पे major minor हो सकता है, but यहाँ कोई major minor नहीं बनता. बट बात आती है क्यों आपका मेटा प्रोडक्ट बनता है. तो द थिंग इज दैट व्हेन
aniline reacts with an acid, ये जो आपने देखा बेटा, that this thing, very important question, teacher's favorite question, that an unexceptional 47% meta nitroaniline is being obtained upon nitration of aniline. Comment or explain. So when aniline is being treated with an acid H plus, तो बेटा वो एक चीज बना के देता है, that is this. जिसको हम नाम देते हैं एनिलीनियम आयन. और ये जो एनिलीनियम आयन होता है, दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग, and second thing, it is ring deactivating group. Owing to this thing, we get 47% meta nitroaniline because of this particular reason only. Clear है बात? ठीक है? Because of this reason only we get 47% meta nitroaniline. A theoretical question can surely be asked on this. Notes में भी है हमारे ये question same. समझ गए बात? पक्का से? Last of this reaction, that is electrophilic substitution, is, जिसने पीछे वाला नोट नहीं किया कर लेना, अभी पीछे कर दूंगा, बट पहले समझ लेते हैं सल्फोनेशन, उसके बाद फिर I would go back. नेक्स्ट इज सल्फोनेशन. क्या होता है सल्फोनेशन में बेटा? ये है एनिलीन हमारे पास, वी आर रिएक्टिंग दिस एनिलीन विद कॉन्क H2SO4, जिसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, HSSO4. H2SO4 को if I can write it like this, HHSO4. So one of the H goes to aniline to form NH3 plus कुछ ऐसा, NH3 plus and HSO4 minus एक salt बन गया. Acid plus base reacts together to give us a salt बन गया. When we heat this particular compound beta, then there is a loss of water molecule being taking place and a rearrangement takes place. Loss of water molecule होएगा and a rearrangement takes place. कहां से होएगा water molecule lose? H from here, O from here, और ये वाला स्पीशी आके पैरा पोजीशन पे अटैच होएगा और पैरा पोजीशन से एक H हटेगा, क्योंकि जब पैरा पे अटैच होएगा तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए H तो हटना पड़ेगा ना वहां से. तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपका, कुछ ऐसा, NH2 SO3H, NH2 एंड साथ में SO3H. Is everyone clear with this? कैसे बनाइए? यहां से H निकला, यहां से O निकला, और ये जब नीचे आके अटैच हुआ यहां से H निकला, H2 लूज हो गया, और क्या बन गया, SO3H. अब ये SO3H is in reversible reaction with, ये एसिड अपना H क्या करता है बेटा, बेस को दे देता है और क्या बना देता है, NH3 plus and SO3 minus, this we call it to be Zwitter ionic form or internal acid base salt. इसी को we also call it to be internal acid base salt. और ये कंपाउंड जो बना इसका नाम होता है बेटा सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड.
बेटा एक ही कंपाउंड में NH3 प्लस भी है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी भी, नेगेटिव चार्ज स्पीशी भी है, एसिड और बेस दोनों चीजें हैं, दैट्स व्हाई इंटरनल एसिड बेस सॉल्ट। और उसी इंटरनल एसिड बेस सॉल्ट को वी कॉल इट टू बी ज्विटर आयोनिक फॉर्म, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एम आई क्लियर विद दिस ऑल ऑफ अस? पीछे वाली करूं या ये नोट डाउन करो पहले? पीछे हो गई है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो अगर हो गया है वो तो। गो फॉर इट फास्ट। चलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 रिएक्शंस है, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ब्रोमिनेशन में ट्राइब्रोमिनेशन होती है, नाइट्रेशन में देयर इज अ मोनोनाइट्रेशन but we get ortho para meta all 3 products, and sulfonation में we get a zwitterionic form. Moving further, ठीक है, अब इसी में बेटा हम लोगों को ना 2 कन्वर्जन्स दे देते हैं, वो इसी बेसिस पे मैंने आपको बतानी है। वो बोलते हैं कन्वर्ट एनिलीन टू पी ब्रोमोफिनॉल ब्रोमोएनिलीन, and secondly aniline to para nitroaniline। these 2 reactions। अब देखो, आप डायरेक्ट अगर रिएक्शन ये दोनों करना चाहोगे तो वी कैन नॉट डू द डायरेक्ट रिएक्शन, क्योंकि जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं एनिलीन की तो देयर इज अ ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म, हमें मोनोब्रोमो चाहिए। जब नाइट्रेशन करते हैं तो वी कैन नॉट गेट डायरेक्टली द पैरा प्रोडक्ट बिकॉज इन दैट ऑर्थो पैरा मेटा मिलता है एंड नो वन इज द मेजर प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म। अगर शायद वहां पे मेटा ना मिलता होता तो ऑर्थो वाला मेजर माइनर होता, पैरा वाला मेजर होता, देन वी कुड हैव गॉन फॉर इट डायरेक्टली, बट अभी नहीं जा सकते। सो इन आइदर ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस, वी नीड टू डिक्रीज द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एनिलीन। एनिलीन का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है इट इज वेरी मच हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर। सो एनिलीन का एक्टिवेटिंग इफेक्ट डिक्रीज करते हैं बाय फॉर्मिंग अ एमाइड। एमाइन को एमाइड में कन्वर्ट करके उसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को डिक्रीज करते हैं पहले। उसके बाद चाहे आप ब्रोमिनेशन करो चाहे आप नाइट्रेशन करो, यू वुड बी गेटिंग द मोनोब्रोमो और मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट। सो व्हाट हैपेंस, it's aniline and we need to have with this product this one। so बेटा इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाओ, एमाइड बनाओगे which would decrease the activating effect of aniline। so what would we do, reacting it with either acid chloride or anhydride। अभी अभी पढ़ा था हमने, if you remember, क्या बन जाएगा, NH C डबल बॉन्ड ओ CH3। हाँ या ना बेटा, बन गया एमाइड हमारा, ठीक है। एन फिनाइल बेंजेमाइड बन गया, एन फिनाइल इथेनमाइड, नॉट बेंजेमाइड, एन फिनाइल इथेनमाइड। अब बेटा इस पे आप कुछ भी करो, चाहे आप ब्रोमिनेशन करो चाहे आप नाइट्रेशन करो, यू वुड बी गेटिंग अ मोनोब्रोमो एंड मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट, वन ऑफ ऑर्थो वन ऑफ पैरा, एंड पैरा वुड बी माय मेजर प्रोडक्ट। सो गोइंग फॉर द ब्रोमिनेशन, क्योंकि ब्रोमिनेशन करनी है हमें, Br2 in presence of OH माइनस, ऊपर एज इट इज रहेगा ये, एंड ऑन द पैरा पोजिशन आई वुड गेट अ Br। अब हमें वापसी तो एनिलीन ही चाहिए, एमाइड तो चाहिए नहीं, इस एमाइड को वापसी एनिलीन में कन्वर्ट करना है हमको। लेट्स गो फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ इट, H2O H plus, what would happen, H over here, OH here, bond breaks, we get the product NH2 Br with CH3 C double bond O OH।
A very important conversion that can be asked, पैरा ब्रोमो और पैरा नाइट्रो एनिलीन. अगर प्रोमो हो गया तो जल्दी से नाइट्रो अपने आप करोगे. There would be only a single difference in it, that is bromination की जगह now you would be going for the nitration, else everything would remain same. Go for it fast. चलो बेटा. So chemical properties of amines are being done over here now. अब जो इसमें एक सेपरेट पार्ट आता है that is डाइजोनियम. डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन और डाइजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है. सो मूविंग टूवर्ड्स द डाइजोनियम पार्ट ऑफ इट नाउ. बेंजीन डाइजोनियम salt, which is this thing, benzene with N2 plus Cl minus. We can show it like this, benzene with N2 plus Cl minus, this thing. So we would be doing the preparation of benzene diazonium salt. We would be going for the chemical properties of benzene diazonium salt. So starting with the preparation part of it. So preparation किससे करते थे बेटा? From aniline, reacting it with NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degrees Celsius. In that case we get N2 plus Cl minus. N2 plus Cl minus. This is benzene diazonium chloride. Now comes the chemical properties. Chemical properties हमारे पास दो टाइप की हैं, type A reactions and type B reactions. So starting over to that. बहुत सारी reactions we would have done it earlier only. देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले टाइप ए रिएक्शंस. टाइप ए रिएक्शंस में हम क्या करेंगे बेटा? द रिएक्शंस इन विच दिस N2X ग्रुप इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सम अदर ग्रुप. पूरा का पूरा N2X ग्रुप हटेगा, उस N2X ग्रुप की जगह कोई और ग्रुप अगर आके अटैच हो जाता है, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस आई कॉल देम टू बी द टाइप ए रिएक्शंस, टाइप ए प्रॉपर्टीज, where the N2X group is replaced by some other group. तो लिखो type A reactions. Type A reactions. Write down reactions in which N2X group, reactions in which this thing, that is N2X group is replaced by some other group. जिसमें if we remember हम लोगों ने पहले reactions पढ़ी हैं, that is सैंडमेयर्स रिएक्शन, गैटरमैन्स रिएक्शन, वो सारी की सारी टाइप ए रिएक्शंस में काउंट होती हैं. क्या बेटा? दैट इज
having with this thing, reacting it with CuCl in presence of और Cu2Cl2 भी हो सकता है. CuCl और Cu2Cl2 are basically the catalyst. So what happens? They give us a chlorobenzene. So we get chlorobenzene in that case. Similarly, it could have been for CuBr in presence of HBr or Cu2Br2. So it would have been bromine. हाँ जी बोलो. नहीं, ब्रोमीन भी हो सकता था. जब भी तो यहाँ पे N2X ग्रुप लिखवाया मैंने. X कैन बी एनीथिंग. इसमें एक और भी आती है बेटा रिएक्शन, दैट इज CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN, जिससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? फिनाइल साइनाइड. So these reactions जहां पे CuCl or Cu2Cl2 is basically being used as the catalyst, we call these reactions to be the Sandmeyer's reactions. We call these reactions to be the Sandmeyer's reaction. ये Sandmeyer's reactions होती हैं जहां पे CuCl या Cu2Cl2 यूज करते हो as a catalyst. Coming over to the other part of this only, नोट डाउन कर लिया ये. इसी में ही अगर मैं गैटरमेंस पे आता हूं तो क्या होता था? This N2 plus Cl minus, if we react it with Cu in presence of HCl, then we would be getting a chlorobenzene. If we would be reacting it with Cu in presence of HBr, then we would be getting a bromobenzene. And these reactions I call it to be the Gattermann's reaction. बोलो बेटा. Gattermann's reaction. ठीक है. इसी में ही आपने और एक रिएक्शन पढ़ रखी है क्या? If I reacted with Ki, क्या होता था? I comes over here, K here, bond breaks from here, bond breaks from here, we get a idobenzene plus N2 plus KCl. इसी में ही when we go for the hydrolysis of diazonium salt, H2O in presence of H plus. So what happens? OH comes over here, H here, bond breaks, we get a phenol plus N2 plus HCl. Phenol plus N2 plus HCl would be obtained. खाली वो वाली Cu in presence of HCl और Cu in presence of HBr are the Gattermann's reaction. Clear? नोट डाउन करो जल्दी से. Moving further with some more reactions of diazonium salt. ध्यान दोगे बेटा. नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पे, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट इफ वी रिएक्ट इट विद एन एसिड दैट इज HbF4, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड. इसका नाम होता है HbF4 का टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, ये देखो H फ्रॉम हियर
Cl from here removes and you get N2 plus and BF4 minus. If we directly heat this in presence of copper, then what happens? यहां से ये BF3 removes, यहां से N2 removes and एक फ्लोरीन आके अटैच हो जाता है बेंजीन पे and you get the product as फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3. और इसी कंपाउंड को if we reacted with NaNO2 in presence of Cu and then we heat it, NaNO2 in presence of Cu and then we heat it, so what happens over here now? Na combines with BF4, NaBF4 बना देता है, N2 separates out और ये NO2 जाके अटैच हो जाता है बेंजीन पे as NO2 plus N2 plus NaBF4. ठीक है. Another reaction of this diazonium salt, N2 plus Cl minus. If we react it with a phosphorus acid, H3PO2 plus H2O. अब what happens over here? You can see, देखो इस H2O में से one of the H combines with Cl to form HCl, separate out हो जाता है. Another H combines to benzene, N2 अलग होता है और वो H आके बेंजीन पे अटैच हो जाता है, खाली नॉर्मल बेंजीन बना देता है. और O combines with this to form H3PO3. So the product formed is benzene plus N2 plus HCl plus H3PO3. And if it is being reacted with ethanol, the diazonium salt is being reacted with ethanol, so what happens over here now? देखो इधर, this H with Cl again HCl निकला, another H with benzene, N2 separates out और ये क्या बन गया? CH3CHO, aldehyde, that is ethanol बन जाएगा. So the product is a benzene plus N2 plus HCl plus CH3CHO. क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो, लास्ट रिएक्शंस बतानी है और फिर डायजोनियम सॉल्ट इज बीइंग वाइंडेड अप. टाइप बी रिएक्शन बताने, दीज ऑल वर द टाइप ए रिएक्शंस, बिकॉज सब में देख सकते हो आप इस N2X को हटा के आप कुछ और लेकर आए होगे एवरीवेयर. दैट्स व्हाई दीज आर द टाइप ए रिएक्शंस. So these were all the type A reactions. Now comes the case of type B reactions. Write down. Type B reactions. Type B reactions, we call it to be coupling reaction. Coupling reactions. इसमें क्या होता है बेटा? In these reactions we replace the ये डाइजोनियम सॉल्ट आपका है, इस डाइजोनियम सॉल्ट में से इस X ग्रुप को हम रिप्लेस कर देते हैं विथ सम अदर ग्रुप. N2X नहीं रिप्लेस होता, आप खाली X ग्रुप रिप्लेस होता है विथ सम अदर ग्रुप. उसको आप बोलते हो टाइप बी रिएक्शंस, टाइप बी प्रॉपर्टीज. ठीक है, जिसमें
रिएक्शन आती है, कपलिंग रिएक्शन बोलते हो उसको, पहले भी हमने पढ़ी है ये, फिर से देखते हैं. डाइजोनियम सॉल्ट, if we reacted with aniline, can I show aniline like this? एक साइड का H मैंने बाहर दिखा दिया फॉर द रिएक्शन टू बी टेकिंग प्लेस, उसको बताने के लिए. यहां से Cl, यहां से H रिमूव्स एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज this is a colored compound formed given the name of yellow dye, and the name of this compound is para amino azobenzene. Para amino azobenzene. Similarly beta, if we do this particular reaction with phenol, this can also take place with phenol. फिनॉल वाली हमने पहले भी कर रखी है, अल्कोहल फिनॉल्स में पढ़ाई है मैंने. यहां से H, यहां से Cl रिमूव्स एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज N double bond N and OH. This is orange dye, and the product formed is para hydroxy azobenzene. Para hydroxy azobenzene. These are the two reactions for the coupling. Clear? अगर ये लिख लिया है तो राइट डाउन अ स्टेटमेंट. Write down a statement. This reaction can be used as a chemical test to distinguish for aniline and phenol. Chemical test to distinguish for aniline and phenol. ठीक है बेटा? This reaction can be used as a chemical test to distinguish for aniline and phenol. So one of the test for aniline is this also. एक आपने test पढ़ा isocyanate test, एक पढ़ा Hinsberg test, and third is the coupling reaction में जो ऑरेंज और येलो डाई बनते हैं. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ केमिकल टेस्ट. ठीक है? विद दिस द रिएक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवरऑल बीइंग फिनिश्ड. इन द नेक्स्ट क्लास आई वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द थ्योरी एंड द कन्वर्जन पार्ट ऑफ इट. सो बी प्रिपेयर्ड विद द रिएक्शन. इफ यू नीड टू लर्न द कन्वर्जन, हाउ टू गो फॉर इट. चलो.